নমস্কার, আপনারা দেখছেন খবরের বিবর্তন। খবর বিবর্তনে আপনাদেরকে স্বাগত। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার স্লোগানকে সামনে রেখে এক বৃহৎ পরিবর্তন সভা অনুষ্ঠিত হয় ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে। সভা ঘিরে সকাল থেকেই শহর জুড়ে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও দলীয় সমর্থকদের ভিড়। মালদা বিভাগের অন্তর্গত উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় এই কর্মসূচির। দলীয় সূত্রে জানা যায়, এটি শুধুমাত্র একটি সভা নয়, বরং আসন্ন নির্বাচনের আগে সংগঠনকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে এক বৃহৎ রাজনৈতিক অভিযান। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় নীতিন নবীন এবং রাজ্যের অন্যতম শীর্ষ নেতা দিলীপ ঘোষ। তাদের বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনের সমালোচনা এবং দুর্নীতি অভিযোগ এবং বিকল্প সরকারের গঠনের আহ্বান। নীতিন নবীন তার ভাষণে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। দুর্নীতিমুক্ত, নিরাপদ এবং উন্নত বাংলা গড়তে হলে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে। তিনি দাবি করেন, আগামী নির্বাচনে জনগণই পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেবে। সভা থেকে একটি বড় রাজনৈতিক ঘোষণা করেন নীতিন নবীন। তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ইসলামপুরের নাম পরিবর্তন করে ঈশ্বরপুর রাখা হবে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি উপস্থিত জনতাকে ঈশ্বরপুরের বাসিন্দা বলে সম্বোধন করেন। এই ঘোষণাকে ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। সবাই দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারী সমস্যাকে বড় ইস্যু হিসাবে তুলে ধরা হয়। বিজেপির দাবি, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি করাই হবে আগামী দিনের অন্যতম লক্ষ্য। দিলীপ ঘোষ তার বক্তব্যে বলেন, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ এখন ক্ষুব্ধ। তিনি কর্মীদের আগামী নির্বাচনের জন্য সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। দলীয় সূত্রের জানা যায়, এই পরিবর্তন যাত্রা রাজ্যের 294টি বিধানসভা কেন্দ্রে পরিক্রমা করবে। আগামী 15ই মার্চ কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিশাল জনসভার মাধ্যমে এই কর্মসূচির সমাপ্তি হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে 2026 সালের নির্বাচনের আগে বিজেপি সংগঠন মজবুত করা এবং ভোটারদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে এই কর্মসূচিকে বড় কৌশল হিসাবে দেখছে। ইসলামপুরের সভা সেই বৃহৎ রাজনৈতিক অভিযানের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। দেখুন সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন কি বলছে, শুনুন একবার। के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस परिवर्तन यात्रा को निकाला है, जो हर जनता के बीच में जाकर परिवर्तन की लहर पैदा करेगा। आज हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार खड़े हैं। हम जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं घुसने देने के लिए पूरे कॉरिडोर का निर्माण करना चाहते हैं, केंद्र की सरकार जमीन मांगती है कि आप हमको जमीन दीजिए, हम बॉर्डर की फेंसिंग करेंगे, बंगाल के लोगों को सुरक्षित करेंगे, देश के लोगों को सुरक्षित करेंगे। तो दीदी, आपकी सरकार जमीन नहीं दे पाती है क्योंकि आप चाहती ही नहीं है कि बंगाल के लोग सुरक्षित रहे। और दीदी, आप तो बांग्लादेशियों को बसाने में लगी हैं। फर्जी कागज के सहारे उन घुसपैठियों को आप यहां का नागरिक बनाने का खेल खेल रही हैं। लेकिन जब फर्जी वोटर को काटने का काम एसआईआर के माध्यम से होता है तो आप काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। लेकिन जब बंगाल की बेटियों के साथ शोषण होता है, उस सरकार बंगाल की जनता के लिए देती है, उसको वो 50 लाख बांग्लादेशियों को देने के लिए लगे हुए थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने चोट नहीं किया होता तो ये हक आपका मारते। ममता दीदी, आपने बंगाल के लोगों को भरोसा दिया था
कि हम यहां पर सोनार बंगाल बनाएंगे, पर आपकी सरकार ने तो केवल लोगों का कमीशन की सरकार बना के रखा, लोगों से वसूली का सरकार बना के रखा। सरकार बनी, आसाम में डबल इंजन की सरकार बनी, हम लोगों ने वहां डिटेक्ट किया, डिलीट किया, अब डिमोट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो हमारे देश के लोगों का, हमारे नागरिकों का हक मारते हैं, उनको हम बाहर करेंगे। मैं पूछता हूं यहां के लोगों से, अपने ईश्वरपुर के लोगों से, कि क्या आप बताइए, क्या आपको उम्मीद है कि टीएमसी की सरकार इनको बाहर कर पाएगी? क्या कम्युनिस्ट की सरकार इनको वापस कर पाएगी? क्या कांग्रेस की सरकार इनको बाहर कर पाएगी? अगर इनको बाहर कर सकता है और आपका हक कोई दिला सकता है, तो आपकी भाजपा की ही सरकार दिला सकती है, आपके नेता नरेंद्र मोदी दिला सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि यहां के लोगों के मानुष के साथ भी जो अत्याचार किया दीदी ने, मां को, बहनों को ठगा, मिट्टी के साथ धोखा किया, और यहां के मानुष के साथ भी क्या व्यवहार किया। आज कोई व्यक्ति, मेरी माता बहनें यहां बैठी हैं, हमारे बिहार में जीविका की दीदियों को 10-10 हजार रुपया दिया गया। आपके बगल के जिले में दीदी 10,000 रुपया दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं कोई 1 रुपया भी हमारी बहनों से मांग सके, कोई बिचौलियों की इतनी हिम्मत नहीं। पर अगर दीदी यहां से, ममता दीदी अगर एक भी योजना का पैसा गरीब को देती है, तो पीछे से टीएमसी के गुंडे पहुंच जाते हैं हफ्ता वसूली करने के लिए। इस हफ्ता वसूली के खेल को बंद करना होगा, हमको इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, आज मेरे घर के, यहाँ के बंगाल के लोग जब मकान बनाते हैं, जब कोई काम करते हैं, कोई सड़क बनती है, तो पूरी तरह से ममता टैक्स देना पड़ता है। उनके भतीजे टीएमसी के गुंडे और ये जो चंद घुसपैठी यहां बैठे हैं, ये वसूली करते हैं। और किससे वसूली करते हैं? तो हमारे पश्चिम बंगाल के माता बहनों, हमारे भाइयों से वसूली करते हैं। इस वसूली के राज को खत्म करना है हमें इस ममता टैक्स के पूरे एपिसोड को खत्म करना है। मैं आपके बीच में आज इस बातों को इसलिए लेके आया कि दीदी कहती है मेरे राज्य में करप्शन नहीं है। दीदी, आपका जो दिखावा है, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दीदी कहती है मैं तो सादगी की प्रतीक हूं, पर दीदी आप तो सादगी की प्रतीक हैं, पर आपके भतीजे और टीएमसी के गुंडे करप्शन की पूरी नदी में डूबे हुए हैं। अब मैं पूछता हूं कि ये शिक्षक भर्ती घोटाले का पैसा किसके पास गया? ये एसएससी घोटाले का पैसा किसके पास गया? नगर पालिका और नगर निगम में जो भर्ती का घोटाला हुआ, उसका पैसा किसके पास गया? और राशन में भी जिसने पैसे का कमीशन खाया, वो पैसा किसके पास गया? और दीदी, आपके कई मंत्री जेल का हवा खा के आए हैं, कई मंत्री जेल का सफर तय करके आए हैं। दीदी, आपको बताना चाहिए वो कौन से शौर्य का काम उन्होंने किया था, कौन सी बड़े बलिदान दिए थे कि उनको जेल का सफर तय करना पड़ा। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और इस भ्रष्टाचारी सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है। दीदी, आपकी सरकार काम करती है, एक चीज में बहुत काम करती है। अगर टीएमसी के गुंडों को संरक्षण देना हो तो आपका पुलिस तंत्र भी पूरा तेजी से काम करता है। घुसपैठियों को बचाना हो तो आपका पुलिस का तंत्र पूरा तेजी से काम करता है। भ्रष्टाचारियों को बचाना हो तो आपका पुलिस पूरा तेजी से काम करता है। पर मेरी मां बहनों को सुरक्षा देने की बात आए तो आपका पुलिस, आपकी प्रशासन पूरी तरह से सो जाती है और निकम्मी प्रशासन बनकर नजर आती है। आज मैं बताता हूं आपको, यहां के लोगों को, जब आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और उसके पहले ममता दीदी के साथ जो कांग्रेस वाली यूपीए सरकार थी, उन्होंने अपने 10 वर्षों में मात्र 4.5 लाख करोड़ की योजनाएं बंगाल की जनता को दिया। और आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 15 लाख रुपया पिछले 11 वर्षों में 15 लाख
करोड़ की योजनाएं आपके बंगाल को दिया। ये अंतर है नरेंद्र मोदी की सरकार और यूपीए और ममता दीदी की सरकारों में। ये केवल ठगने का काम करते हैं। आज रेलवे का बड़ा कॉरिडोर, आज पूरे इस इलाके का विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए लगातार काम हो रहा है। कई वंदे भारत ट्रेन से लेकर कई बड़े योजनाएं यहां पर चल रही हैं। ये सब योजनाओं का देन आपकी अपनी नरेंद्र मोदी सरकार का है। इन बातों को लेकर हमको अपने जनता के बीच में जाना है। दीदी का तो खेल और भी बहुत बड़ा है। दीदी जब योजनाओं की बारी आती है तो केंद्र से पैसा आता है तो अपना चेहरा चमकाने के लिए योजनाओं का नाम बदल देती है। ये खेल भी दीदी खेलती है। आयुष्मान भारत की योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, हर गरीब को 5 लाख इलाज का, मुफ्त इलाज का पैसा दिया, पर उनको इससे मतलब नहीं था। उनको लगा कि अगर मेरे योजना में मेरा चेहरा नहीं नजर आएगा तो हम बंगाल के गरीब लोगों को उसका लाभ नहीं लेने देंगे, और इसके कारण आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को रोकने का काम किया। जिस बंगाल के आर्थिक विकास को हमेशा देश के विकास से जोड़ा जाता था, 10% जिसकी भागीदारी होती थी देश के विकास में, आज उसकी आधी 5% ही भारत के विकास में उनका योगदान रह रहा है। जिस बंगाल में बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती थी, और दीदी आपने भी तो जो आंदोलन किया था कि हम इंडस्ट्री लाएंगे, कंपनी को लाएंगे, कम्युनिस्ट के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन पिछले 15 वर्षों में आपने एक भी बड़ी कंपनी और कारखाने नहीं लगाए, लेकिन 6000 से अधिक कंपनियां बंगाल छोड़ के चली गई। अगर वो कंपनियां बंगाल में काम करती तो बंगाल के युवाओं को रोजगार मिलता, बंगाल के लोगों को अवसर मिलता। उस अवसर को छीनने का काम किया है आपने। बंगाल के युवाओं को बेरोजगारी के पूरे सागर में धकेल दिया है। बंगाल का युवा आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। दीदी आपने बंगाल के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, यहाँ के किसानों के साथ जो व्यवहार किया है उसका सजा देने का समय आ गया है। हम लोगों ने इसी बंगाल से वंदे मातरम की आवाज जो गूंजी, जो पूरा देश अंग्रेज के खिलाफ खड़ा हो गया, आज उसी वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस बंगाल ने उस वंदे मातरम की आवाज की जयघोष की थी, उसी बंगाल के सांसदों ने जब संसद के सत्र में वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ का हम अभिवादन समारोह कर रहे थे, संसद का सत्र में विशेष बहस चल रहा था, तो बंगाल के टीएमसी के सांसदों ने उसका विरोध किया और कहीं न कहीं उस वंदे मातरम का भी अपमान किया है। मैं बंगाल के लोगों से कहूंगा, अब बदला लेने का समय आ गया है। जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया उनको बंगाल के लोग माफ नहीं कर सकते, हमको सजा देनी है। मैं इसलिए कहता हूं, जिस वंदे मातरम ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मजबूर किया, उसी वंदे मातरम की आवाज को बुलंद कीजिए। टीएमसी के गुंडे और टीएमसी की शासन को हम उखाड़ फेंकेंगे, बंगाल की जनता को टीएमसी से मुक्त कराएंगे। मित्रों, आज का दिन मैं बंगाल के लोगों से उस परिवर्तन के लिए आवाज बुलंद करने के लिए आग्रह करने आया हूं, क्योंकि हम अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित बंगाल बनाना चाहते हैं। जब 2047 का विकसित भारत का अगर सपना पूरा करना है तो हमें मालूम है कि हमें 2047 में विकसित बंगाल को भी सपना पूरा करना है। और विकसित बंगाल तब बनेगा जब बंगाल के एक घर में रोशनी पहुंचेगी, विकास की योजनाएं पहुंचेंगी और चेहरे पे मुस्कान पहुंचेगी। वो मुस्कान कोई ला सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ला सकती है। मित्रों, इस बंगाल ने पूरे देश को कई बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले की घड़ी बनी। बंगाल ने हमेशा इस देश को दिशा दिया है। आज उस बंगाल को सुरक्षा देने का संकल्प हम ले रहे हैं, क्योंकि जिस बंगाल से बड़े पैमाने पर घुसपैठियों का रास्ता बन रहा है वो केवल बंगाल को असुरक्षित नहीं कर रहा। मित्रों, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस पूरे रास्ते से देश के कई राज्यों में ये बांग्लादेशी घुस रहे हैं। मित्रों, तो हम अगर बंगाल को सुरक्षित नहीं करेंगे तो हम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मित्रों,
इसलिए आइए, हमको बंगाल को सुरक्षित बंगाल बनाना है तो पश्चिम बंगाल से इस टीएमसी की गुंडागर्दी वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। मैं आप सबको विकसित बंगाल, विकसित भारत और डबल इंजन की सरकार लाने का संकल्प के लिए आग्रह करता हूं। पूरा देश आने वाले समय में 4 तारीख को होली मनाएगा मित्रों, और हम अब सबसे संकल्प करना चाहते हैं कि आज होलिका दहन भी है ना? सब इलाके में होलिका दहन आज ही है ना? तो इस सरकार को भी दहन करने का समय आ गया है। इस सरकार को भी आज दहन कर देना है और पूरी तरह से 4 तारीख को एक होली मनेगी। और जिस दिन भाजपा का विजय अभियान यहां सफल होगा, जिस दिन कमल खिलेगा पूरे पश्चिम बंगाल में, उस दिन दूसरी होली होगी, वो भगवा होली होगी मित्रों। आइए अपने बंगाल को इस भगवा होली के वातावरण में पूरी ताकत से मनाने के लिए अपने आप को झोंक दे। हम बंगाल के सम्मानित नागरिकों से अपील करते हैं कि इस कम्युनिस्टों की भ्रष्टाचार सरकार को आपने देखा, तृणमूल के गुंडा राज को आपने देखा, अब आइए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सुशासन की सरकार बनाए जिसमें बंगाल का विकास छिपा हो। आइए, हम सबका एक ही नारा है, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। दीदी, घुसपैठियों के प्रति ममता, पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति नफरत, दीदी चोलबे ना, चोलबे ना। अब बंगाल की जनता इस टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और बंगाल में एक ही आवाज गूंजेगी, जय मां काली, जय मां काली, जय मां भारती। मैं बहुत बहुत अपने इस ईश्वरपुर के तमाम नागरिकों का अभिनंदन करता हूं और संकल्प लीजिए, कमल खिलाइए, ईश्वरपुर को अपना सपने वाला ईश्वरपुर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।